حج 2026 کے 4 اسپیشل پیکیجز الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز 15 جنوری 2026 بکنگ کی آخری تاریخ۔ السلام علیکم، BBN خبرنامہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آفرین شمیم۔ خبرنامہ کی شروعات میں ہیڈ لائنز۔ 27 اور 28 دسمبر پرانے شہر میں پانی کی فراہمی رہے گی معطل۔ اہم پائپ لائن کی مرمت۔ میرالم، کشن باغ، مغل پورہ، فلک نما، یاقوت پورہ سمیت دیگر علاقے شامل۔ تلنگانہ رائزنگ 2047 محض تشہیر نہیں، عملی لاہے عمل۔ CM ریونت ریڈی کا بیان۔ تمام محکمے کو فوری ایکشن پلان تیار کرنے کی ہدایت۔ کانگریس میں مضبوطی سے برقرار ہوں، افواہیں بے بنیاد۔ دانم ناگیندر کا دو ٹوک اعلان۔ JHMC انتخابات میں کانگریس و مجلس کی مشترکہ شاندار کامیابی کا دعویٰ۔ نیو ایئرز ایو پر کمشنر پولیس VC سنجار کا سخت انتباہ۔ قانون شکنی پر زیرو ٹالرنس، ریزنگ، ویلنگ، منشیات اور فحش رقص پر سخت کارروائی۔ عوام سے محفوظ جشن کی اپیل۔ رین بدار قتل کیس میں پولیس کی بڑی کارروائی۔ ظفر پہلوان اور ان کے بیٹوں کے گھروں پر اعلی صبح چھاپے۔ غیر قانونی چاقو ضبط، آرمز ایکٹ کے تحت 2 FIR درج۔ اب خبریں تفصیل سے۔ حیدرآباد میں میٹرو واٹر بورڈ کی جانب سے ضروری مرمتی اور دیکھ بھال کے کاموں کے باعث شہر کے مختلف علاقوں میں 36 گھنٹوں کے لیے پانی کی فراہمی معطل رہے گی، جس کا آغاز 27 دسمبر کی صبح 6 بجے سے ہوگا اور 28 دسمبر کی شام 6 بجے تک سپلائی بند رہے گی۔ اس بندش سے اولڈ سٹی کے متعدد علاقوں جیسے کہ شدید طور پر متاثر ہوں گے، جن میں میرالم، کشن باغ، بال سٹی کنٹا، مغل پورہ، فلک نما، بہادر پورہ، جہان نما، محبوب منشن، سنتوش نگر، ونے نگر، سعید آباد، چنچل گڑا، آسمان گڑھ اور یاقوت پورہ شامل ہے، جبکہ وسطی اور مشرقی حیدرآباد کے بعض علاقوں جیسے نارائن گڑا اور دلسکھ نگر میں بھی پانی کی سپلائی متاثر رہے گی۔ اس کے علاوہ ریزروائر سے پانی حاصل کرنے والے علاقوں ایڈکمنٹ، شیوم، چنچل گڑا، علی آباد اور یاتت نگر سے منسلک بستیاں بھی بندش کی زد میں آئیں گی۔ واٹر بورڈ حکام کے مطابق یہ عارضی بندش ناگزیر ہے، کیونکہ اس دوران اہم پائپ لائن مرمت اور نظام کی بہتری کے کام انجام دیے جائیں گے تاکہ آئندہ پانی کی تقسیم مزید بہتر بنائی جا سکے۔ شہریوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ پیشگی پانی ذخیرہ کر لیں، استعمال میں احتیاط برتیں اور غیر ضروری ضیاع سے بچیں، جبکہ سپلائی کے 28 دسمبر کی شام کے بعد معمول پر آنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ تلنگانہ میں سردی کی لہر روز بروز شدید ہوتی جا رہی ہے اور ریاست کے مختلف حصوں میں کم سے کم درجہ حرارت میں نمایاں گراوٹ درج کی جا رہی ہے۔ محکمہ موسمیات حیدرآباد کے مطابق ٹھنڈی ہواؤں کے باعث آئندہ 2 سے 3 دنوں میں سردی میں اضافہ مزید ہونے کا امکان ہے۔ خاص طور پر حیدرآباد اور شمالی مغربی وسطی تلنگانہ کے اضلاع جیسے عادل آباد، کمرم بھیم، آصف آباد، منچریال، نرمل، ورنگل، ہنمکنڈا، جنگاؤں، سدی پیٹ، سنگا ریڈی، میدک اور کاماریڈی میں سردی کی شدت بڑھ سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ 26 دسمبر تک کئی اضلاع میں کم سے کم درجہ حرارت 5 سے 10 ڈگری سیلسیس کے درمیان ریکارڈ کیا جا سکتا ہے، جبکہ بعض علاقوں میں درجہ حرارت معمول سے 3 سے 4 ڈگری کم رہنے کا خدشہ ہے۔ اسی تناظر میں گھنی کوہر اور شدید سردی کے پیش نظر اورنج اور بلو الرٹس بھی جاری کیے گئے ہیں۔ سردی کے باعث صبح اور رات کے اوقات میں ٹھنڈ زیادہ محسوس کی جا رہی ہے، جس پر عوام کو گرم کپڑے پہننے، ہیٹر کے محتاط استعمال اور خصوصی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے، جبکہ موٹر سائیکل سواروں کو ہیلمٹ، ٹوپی اور دستانے پہننے اور گاڑی چلانے والوں کو کوہر اور پھسلن کے پیش نظر رفتار کم رکھنے کی ہدایت دی گئی ہے تاکہ کسی بھی ناخوشگوار حادثے سے بچا جا سکے۔ تلنگانہ رائزنگ 2047 ویژن کے نفاذ کے لیے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے سینئر سرکاری افسران کو ہدایت جاری کی اور واضح کیا کہ یہ ویژن دستاویز محض تشہیری مشق نہیں بلکہ ریاست کی ترقی کا لاہے عمل ہے، جسے فوری طور پر عملی جامہ پہنانا ضروری ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ تمام محکموں کو مربوط کارکردگی کے ساتھ ہر پہلو پر
अमल दरामद के लिए एक्शन प्लान तैयार करना होगा और कारकर्दगी में कोताही वाली सूरत में सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकारी सेक्रेटरीज को माहाना रिपोर्टें चीफ सेक्रेटरी को जमा करवाने और IAS अफसरान को हर 10 दिन बाद फील्ड विजिट का हुक्म दिया गया है। मस्जिद बरां सरकारी दफातर को किराए की जगह सरकारी इमारत में मुंतकिल करने और 31 जनवरी तक फ्लाइंग निज़ाम मुकम्मल करने की आखिरी तारीख भी मुकर्रर की गई है। इस विजन का मकसद तेलंगाना को 2047 तक $3 ट्रिलियन मैशियत में तब्दील करना है, जिसके लिए मौसर हुक्मरानी, मरबूत तरक्की और महकमा जाती जवाबदेही को कलीदी अहमियत दी गई है। हैदराबाद के खैरताबाद हल्के के रुकने असम्बली दानम नागेंद्र ने सियासी अफवाहों को मुस्तरद करते हुए वाज़ेह किया कि वो पूरी मनसूबूती के साथ कांग्रेस पार्टी में ही बरकरार हैं। उन्होंने पार्टी छोड़ने की खबरों को बेबुनियाद करार देते हुए दावा किया कि आइंदा ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में कांग्रेस और AIMIM मिलकर तमाम 300 डिवीजन्स में शानदार कामयाबी हासिल करेंगे। दानम नागेंद्र ने कहा कि वो ग्रेटर हैदराबाद भर में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे और कांग्रेस हुकूमत की फलाही स्कीमों को अवाम तक पहुंचाएंगे। इनके मुताबिक अवाम का रुझान तरक्की और फलाही पॉलिसियों की वजह जानिब है और यही वजह है कि आने वाले इंतखाबात में कांग्रेस को मजबूत अवामी तायद हासिल होगी। ఏ పార్టీలో ఉంటే అదే గెలుస్తుంది కదా, అది మన స్పెషాలిటీ కదా. మీరే గెలవాలంటారు, ఏ పార్టీ గెలవాలి? పార్టీ పరంగా కాంగ్రెస్ గెలుస్తుంది కదా, ఇంకెవరు గెలుస్తుంది? వేరే పార్టీ గెలుస్తుందా? ముఖ్యమంత్రి గారు ఇంత బడ్జెట్ ఇచ్చి ఇన్ని అభివృద్ధి చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఏ పార్టీ గెలుస్తుందని నువ్వు తిరకాసు మాటలు ఎందుకు? మీరు ఏ పార్టీ అంటే ఏం చెప్తారు? కాంగ్రెస్ చెప్తున్నాం కదా, కాంగ్రెస్ नरसापुर हल्के में BRS सरपंचों की तहनीती तकरीब और रेड्डीपल्ली सब स्टेशन के मायने के दौरान साबिक वजीर व MLA हरीश राव ने रेवंत रेड्डी हुकूमत पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि सरपंच इंतखाबात में तमाम रुकावटों के बावजूद BRS ने 4000 से ज्यादा नशिस्तें जीतकर अवामी हिमायत साबित कर दी है। हरीश राव ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत किसानों को 24 घंटे बिजली देने का दावा कर रही है, जबकि रेड्डीपल्ली में मुडूर जैसे देहात में सिर्फ 12 से 13 घंटे बिजली फराहम की जा रही है, जिसकी तस्दीक सब स्टेशन के लॉग बुक से होती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दौर में भी किसान बिजली और खाद की किल्लत से परेशान थे और आज भी वही हालात हैं, जबकि KCR के दौर में किसानों को बिला वादा 24 घंटे मियारी बिजली दी गई। हरीश राव ने हुकूमत से मुतालिबा किया कि किसानों को फौरी तौर पर मुकम्मल 24 घंटे बिजली फराहम की जाए। 14 గంటలు వచ్చింది ఇక్కడ. అంటే ఇప్పుడు 5 నుంచి 2 సార్, అది 5 12 మీరు అట్లే రాస్తారు. 5 నుంచి 7 12 ఈడ 3 కంటే 7 2 9 గంటలు 9 గంటలు అంతే సార్. 13 గంటలు 5 నుంచి 12 సార్, 7 గంటలు 7 గంటలు. ఈడన్నిటికి 2 సార్, ఇది 3 ఒక నిమిషం. నీకు చదువు వస్తుందో రాదా? లేదు సార్, ఏం రాసింది చదువు బిడ్డ. ఏం రాసింది 001 సింగిల్ ఫేజ్. 3 ఫేజ్ ఎప్పుడు ఉంది? 3 ఫేజ్. అంటే ఈ 1 అవర్ అంటే మినిట్ లో రీడింగ్ ఏం చేస్తారు? ఇంకా మీరు వెనక కూడా 2 o'clock పక్కా సార్. ఇది అదే ఇక్కడ నువ్వు 2 o'clock మరి ఎందుకు సింగిల్ ఫేజ్ అని రాసింది లాగ్ బుక్ లా? క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది ఏంటంటే నువ్వు 3 బజేకి ఇచ్చినావు. లేదు సార్, అట్లా ఇవాళ అయితే 4 బజేకి ఇచ్చినావు. రోజు ఇవాళ అయితే 4 బజేకి ఇచ్చినావా? రోజు ఇక్కడ ఎన్ని గంటలకు ఇచ్చిండు? 4 o'clock ఇచ్చిండు. 3 కూడా సింగిల్ ఫేజ్ ఉంది. 4 గంటలకు 3 ఫేజ్ వచ్చింది. ఎప్పుడు? ఇవాళ. నిన్న 4కి ఇచ్చినావు 3 ఫేజ్. సాయంత్రం 4కు వీకినావు. పొద్దుగాల 4కి ఇచ్చినావు. 12 గంటలకు వస్తుంది కరెంట్. యాక్చువల్ అయితే 2 వరకు సార్ పర్మిషన్ అట్లుంది, కానీ మీరు ఎందుకు కటింగ్ పెడుతుంది? ఆపరేటర్ తప్ప, ఏడీ తప్ప, రేవంత్ రెడ్డి తప్ప. లేదు సార్, రేవంత్ రెడ్డి చెప్తాడు 12 గంటలు. చెప్పుడేమో రేవంత్ రెడ్డి 24 గంటల కరెంట్ ఇస్తున్నారు రైతులకు అన్నాడు. ఇక్కడ చూస్తే 12 గంటల కరెంట్ వస్తుంది. చెప్పుడు 24 గంటలు, ఇచ్చుడు 12 గంటలు. 4 to 2 అయితే లాగ్ బుక్ చెప్తుంది. 4కి కరెంట్ పోయింది 22 తారీఖు. పొద్దుగాల 4కి వచ్చింది. 12 గంటల కరెంట్ వస్తుంది.
మళ్ళీ ఆపరేటర్ మీద పడుతుంది సార్ మీకు. ఆపరేటర్ కాదు, రేవంత్ రెడ్డి మీద పడుతుంది. రేవంత్ రెడ్డి ఎంత ఇవ్వమంటే అంత ఇస్తావు. ఆపరేటర్ ఏం చేస్తాడు? మీరు 5 to 2 బాబు, రేవంత్ రెడ్డి ఎన్ని గంటలు ఇవ్వమంటే నువ్వు ఏడి ఇస్తావు, ఏం కాదు ఆపరేటర్ ఇస్తాడు. నువ్వేం చేస్తావు? పోయి మీదికి వెళ్ళొచ్చినాక నువ్వు ఆపుకుంటావా, తింటావా? हैदराबाद के आईटी हब साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट की सालाना क्राइम रिपोर्ट 2025 के मुताबिक साइबर क्राइम में गुज़िश्ता साल के मुकाबले नुमाया कमी के बावजूद ये बदस्तूर सबसे बड़ा जुर्म बनकर सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में मजमूई तौर पर 37,243 मुकदमा दर्ज हुए हैं, जिनमें साइबर क्राइम का हिस्सा 21% रहा, जबकि गुज़िश्ता साल ये शरह 32% थी। इस तरह साइबर जुराइम में तकरीबन 35% कमी रिकॉर्ड की गई है। दिगर नुमाया जुराइम में जायदाद से मुताल्लिक़ 5,527 मुकदमात और सड़क हादसात के 4,608 केसेस शामिल हैं, जबकि जहेज हिरासानी के 1,314 मुकदमात ने तशवीश में इजाफा किया है। पुलिस ने संगीन जुराइम से 85% डिटेक्शन रेट हासिल करते हुए 358 से 304 मुकदमात हल किए हैं। इकोनॉमिक ऑफिसर्स विंग ने धोखाधड़ी, जाली दस्तावेजात और चिट फंड फ्रॉड के 95 मुकदमा दर्ज करते हुए 5 करोड़ 11 लाख रुपए मालियत की जायदाद जब्त की और 26 करोड़ से जायद रकम मुंजमद की। खवातीन व बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के तहत शी टीमों ने 3,315 अफराद को रंगे हाथों पकड़ा। 2,298 बच्चों को ऑपरेशन मुस्कान के तहत बाजियाब कराया, जबकि इंसानी स्मगलिंग और जिस्म फरोशी के खिलाफ भी बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई। मंशियात के मुतालिक मामलात में 2025 के दौरान 26% इजाफा हुआ है, जिसमें 1,228 मुलजिमीन गिरफ्तार हुए, जबकि 353 मुकदमात में 2,730 किलोग्राम मंशियात, जिनकी मालियत 25 करोड़ 84 लाख रुपए है, तलब की गई। इसके अलावा गैर कानूनी क़याम के इल्ज़ाम में 72 गैर मुल्कियों को मुल्क बदर किया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक ये अदद शुमार कानून व नज़म बरकरार रखने के लिए जारी सख्त इक़दामात की अक्कासी करते हैं। हैदराबाद में न्यू ईयर्स ईव के पेश नज़र कमिश्नर पुलिस वीसी सजनार IPS ने जश्न मनाने वालों को सख्त इंतबाह जारी करते हुए कहा कि वो कानून की हदूद से तजावुज़ करने वालों के खिलाफ किसी किस्म की नरमी नहीं बरती जाएगी। पुलिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बंजारा हिल्स में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए फील्ड अफसरान के साथ इजलास में उन्होंने क्रिसमस और नए साल के मौके पर सख्त निगरानी की हिदायत दी। कमिश्नर पुलिस ने वाज़े किया कि शराब नोशी के बाद गाड़ी चलाने के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी और 31 दिसंबर की रात शहर भर में 100 मुकदमात पर खुसूसी ड्रंक एंड ड्राइव चेकिंग होगी, जिसके लिए इजाफी फोर्स के साथ प्लाटून तैनात किए जाएंगे। नशे की हालत में गाड़ी चलाने वालों को गाड़ियां जब्त की जाएंगी। 10,000 जुर्माना और 6 माह तक कैद की सजा के अलावा ड्राइविंग लाइसेंस मुस्तकिल तौर पर मनसूख करने की सिफारिश भी की जाएगी। कमिश्नर ने पार्टी में शिरकत करने वालों को कैब सर्विस या नामजद ड्राइवर इस्तेमाल करने का मशवरा दिया, जबकि रेसिंग, व्हीलिंग और लापरवाह ड्राइविंग में मुलविस नौजवानों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मंशियात या फहाश रक्स की इजाज़त देने पर इंतजामिया के खिलाफ लाइसेंस मनसूख और फौजदारी मुकदमा दर्ज होंगे। कमिश्नर पुलिस ने आवाम से अपील की है कि वो कानून का एहतराम करते हुए नए साल का खैर मक़दम महफूज अंदाज में करें, ताकि खुशियाँ तल्ख तजुर्बे में तब्दील ना हों। हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस वीसी सजनार IPS ने अवाम बिलखुसूस बुजुर्ग शहरियों को डिजिटल अरेस्ट स्कैम से होशियार रहने की हिदायत दी है। अपने जारी एक वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 1 माह से डिजिटल अरेस्ट के नाम पर धोखाधड़ी के वाक़यात में इजाफा हुआ है। यहाँ तक कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात में इस स्कैम पर तवज्जो दिलाई है। इसके बावजूद कई अफराद इस फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। कमिश्नर पुलिस ने वाज़े अल्फाज में कहा कि कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ मौजूद ही नहीं, ताहम जालसाज ED, CBI और दिगर मरकजी एजेंसियों के अफसरान बनकर फ़ोन कर रहे हैं, जाली FIR दिखाकर लोगों को धमकाते और रकम ऐंठने की कोशिश करते हैं। वीसी सजना ने आवाम से अपील की है कि ऐसे फ़ोन कॉल्स पर बिल्कुल खौफजदा ना हों, किसी किस्म की रकम अदा ना करें और शक की सूरत में फौरी तौर पर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर राब्ता करें, ताकि अपनी मेहनत की कमाई को महफूज रखा जा सके। हैदराबाद सिटी खसाबे क्राइम पुलिस ने आवाम को खबरदार किया है कि जाली चालान
और फेक पेमेंट लिंक्स के जरिए साइबर फ्रॉड के वाकयात में तेजी से इजाफा हो रहा है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस साइबर क्राइम यूनिट हैदराबाद वी अरविंद बाबू ने एक इंतबा जारी करते हुए बताया, साइबर मुजरिम SMS और व्हाट्सएप के जरिए फर्जी पैगामात भेज रहे हैं, जिनमें गाड़ियों के बकाया ट्रैफिक चालान जाहिर करते हुए फौरी अदायगी के लिए लिंक दिया जाता है, जो बज़ाहिर सरकारी वेबसाइट जैसा नजर आता है। लिंक पर क्लिक करने के बाद गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करवाया जाता है और फिर जाली रकम दिखाकर अदायगी करवाते हैं। मोबाइल में खतरनाक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है या बैंकिंग तफसीलात हैक हो जाती हैं, जिसके नतीजे में गैर मजाज लेन देन अंजाम पाता है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस साइबर क्राइम्स ने वाजे किया है कि ट्रैफिक चालान की अदायगी सिर्फ सरकारी पोर्टल्स के जरिए ही करें, किसी भी मुश्तबा लिंक पर क्लिक ना करें। व्हाट्सएप या जाती पैगामात में आने वाले पेमेंट लिंक्स पर भरोसा ना करें और OTP, UPI पिन या बैंक तफसीलात किसी को ना दें। हैदराबाद के पुराने शहर के रेन बाजार इलाके में जुनैद बिन मोहम्मद बहरमूस के कत्ल केस के सिलसिले में पुलिस ने आज अली सुबह सख्त कार्रवाई करते हुए जफर पहलवान और इनके बेटों के घरों पर छापे मारे। इस कॉर्डर एंड सर्च ऑपरेशन में तकरीबन 60 पुलिस एहलकारों ने हिस्सा लिया, जो रेन बाजार पुलिस स्टेशन के हुदूद के धोबीघाट इलाके में अंजाम दिया गया। तलाशी के दौरान पुलिस ने मुतअद्दिद गैर कानूनी चाकू और मुश्तबा गैर कानूनी जायदादों से मुताल्लिक अहम दस्तावेजात जब्त किए, जिनकी तफसीलात जांच जारी है। जब्तशुदा हथियारों की बुनियाद पर पुलिस आर्म्स एक्ट के तहत 2 FIR दर्ज कर रही है, जिनमें 40 मुकदमात में मुलविस जफर पहलवान, 5 मुकदमात में मुलविस साबिक रौडी शीटर सईद पहलवान और 1 मुकदमा में मुलविस सुलेमान पहलवान को नामजद किया गया है। तीनों मुलजिमान फिलहाल मफरूर हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए खुसूसी पुलिस टीमें तश्कील दी गई हैं। पुलिस अहदेदारों ने वाजे किया है कि शहर में रौडीज़म और मुजरिमाना सरगर्मियों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप लोगों को मालूम है, वो यही महीने 3 तारीख को रात में एक मर्डर हुआ जुनैद का। वो मर्डर को वो उमर अली जाबरी और एक उनका भाई अली बिन जाबरी बोल के, उन लोगों के साथ पूरा 12 आदमी पूरा मिलके प्लान करके उन लोगों को उनको बहुत भयानक मर्डर करे। उसके बारे में वो मर्डर के परंपरा में अभी तक हमारा 8 आदमी का हम लोग अरेस्ट करें और वो बाकी वाला भागे। इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन में भागे। कोई मर्डर केस के बारे में हम लोग आज सुबह अराउंड 7 o'clock से वो हमारा को कहाँ शक है। रौडी शीटर से जफर पहलवान और एक रौडी शीटर सईद, ये दोनों को घरों को पूरा जो हमारा ऑनरेबल DCP साहब के इंस्ट्रक्शन के बारे में हम लोग को पूरा 6 टीम्स बना के उन लोगों को घरों को घर में एज पर द प्रोसीजर सर्च वारंट लेके हम लोग उन लोगों घरों के ऊपर रेड करें, पूरा सर्च करें। वो सर्चिंग में इससे पहले आप लोग देखे वो पूरा इतने वेपन्स मिला है, उसमें वो चाकू से तलवार मिला। इसके बारे में हम लोग 100% आर्म्स एक्ट लगा देते। और एक हमारा को मेन सईद रौडी शीटर भाग गए और एक उनका फादर जफर पहलवान भी घर में नए हैं उन्होंने। उसके बारे में इंक्वायरी चल रही और एक उनका घर में थोड़ा रेंटल एग्रीमेंट्स और कुछ इलीगल डॉक्यूमेंट्स पूरा मिला, वो भी उसके बारे में भी वो केस करके उसके बारे में भी इन्वेस्टिगेशन चलते रहते हैं। हमारा रिक्वेस्ट क्या है बोले तो पुलिस को पुलिस तरफ से कोई भी पब्लिक को डरने की जरूरत नहीं। जो भी उन लोगों की तरफ से कौन सफ़र हुआ अभी नहीं, पुराना भी सारे उसके बारे में हमारा सफ़र हुआ बोल के जो भी है तो भी डायरेक्टली हमारा को मिल सकते तो हमारा को मदद करने के वास्ते वी आर वेरी ग्रेटफुल टू आवर ऑनरेबल DCP और ऑनरेबल कमिश्नर ऑफ पुलिस। क्या वो तो वैसे आदमी लोगों को वास्ते हम लोग को काम करने हमारा लक बोल के हम लोग फील हो रहे हैं। वैसे आदमी के हो तो इसके वास्ते ये राउडीज़ और एक ये गुंडाइज़म राउडीज़म हमारा को वो चलने के वो नहीं है, पूरा निकाल देते। उसके बारे में ये प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहते नहीं। अब वो एक्चुअली वो आप लोग भी देखे एक्चुअली उन लोग घर में नए हैं, उन लोग एक्चुअली उसके बारे में भी अब स्पेशल पार्टी फिर रहे। स्पेशल पार्टी अब वो जब से मर्डर हुआ जब से भी हम लोग 5 टीम्स वही काम पे फिर रहे
अब वो ये कंटिन्यू प्रोसेस, इसमें एक मालिक बोल के वो जफर पहलवान का वो दामाद है, उन्होंने मना दुबई भाग्य बोल के मना वो मालूम है। इसके बारे में हम लोग LOC भी लगा दिए, वो भी वो अंडर प्रोसेस चल रहे इसके बारे में। और एक कौन कौन भागे उसके बारे में भी स्पेशल टीम बनाए। वेपन किसके पास से निकला इतना? क्या भाई? वेपन किसके पास से निकला? ये वेपन्स सईद रोड शूटर के घर में मिला, और एक ये बड़ा तलवार जफर पहलवान उनका घर में मिला, वो भी आप लोग वीडियो में क्लियरली देख सकते हैं। इसमें उसके बारे में 100% हम लोग आर्म्स एक्ट लगा देते, लगाने के बाद वी विल प्रोसीड फर्दर एक्शन। थैंक यू। क्रिसमस के मौके पर याकुतपुरा में खुशी और बाहमी हम आहंगी का खूबसूरत नज़ारा देखने में आया है, जहां मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी की क़ियादत में और नुमाइंदगी पर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 11 गिरजा घरों के लिए 3.3 लाख रुपये की रकम मंजूर की गई। इस इमदाद से चर्चों की सफेदी, त्योहारी रोशनियों और क्रिसमस तकारीब के इंतजाम किए गए, जिससे ईसाई बरादरी में खुशी की लहर दौड़ गई। इस मौके पर मजलिस ने इस अज़्म का अदा किया कि वो हमेशा इत्तेहाद, शमूलियत और बैनुल मजहब हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए काम करती रहेंगी और हर मजहब व तबक़े के साथ यकसां एहतराम और ताउन को यकीनी बनाएगी। हैदराबाद में ट्रांसजेंडर अफराद को दरपेश मसाइल के हल के लिए डिप्टी कमिश्नर पुलिस नॉर्थ जोन मिसेस रश्मि पेरुमल की जानिब से एक अहम इजलास मुनक़्क़द किया गया, जिसमें तकरीबन 25 ट्रांसजेंडर अफराद ने शिरकत की। इस दौरान अवाम की जानिब से मौसूल होने वाली शिकायत, खुसूसन शादी ब्याह और घरेलू तकरीबात के दौरान मुबैना वसूलियों के मामलात पर तफसीली गुफ्तगू हुई, जिस पर DCP ने ट्रांसजेंडर अफराद को हुनरमंदी, स्किल डेवलपमेंट और खुद रोजगार के मौक़े इख्तियार करने की तलखीन की, ताकि बाइज्जत रोजी रोटी हासिल की जा सके। इजलास में ट्रांसजेंडर बरादरी ने मुकामी और गैर मुकामी अफराद की शनाख्त में मुश्किलात का जिक्र करते हुए शनाख्ती कार्ड जारी करने का मुतालबा किया। इस मौके पर DCP ने यकीन दहानी करवाई कि हुकूमत और मुतल्लिका महकमे ट्रांसजेंडर बरादरी की फलाह व बहबूद और बाज़ाबतकारी के लिए मुकम्मल ताउन फराहम करेंगे। रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट की जानिब से बुजुर्ग शहरियों के मदद और निगहदाश्त के लिए शुरू किए गए खुसूसी प्रोग्राम गोल्डन केयर के तहत आज तीसरा मेगा मुफ्त तिबी कैंप मुनक़्क़द किया गया, जो कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा सुधीर बाबू IPS के विजन और रच्चाकुंडा सिक्योरिटी काउंसिल के इश्तिराक से अंजाम पाया। इस कैंप में 244 बुजुर्ग अफराद को एक ही जगह जामा तिब्बी सहूलतें फराहम की गई, जहाँ जनरल मेडिसिन, कार्डियोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, डेंटिस्ट्री और आई केयर के माहिर डॉक्टरों ने मुआयना किया, जबकि ECG, ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर जैसे अहम तिब्बी टेस्ट भी बिल्कुल मुफ्त अंजाम दिए गए। इस मौके पर सुधीर बाबू ने बुजुर्गों की फलाह व बहबूद के लिए पुलिस के अज़्म को दोहराया, जबकि मुस्तफ़ीद होने वाले बुजुर्ग शहरियों ने इस काबिल सताइश इक़दाम पर रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया। हैदराबाद एक मरतबा फिर मंशियात की सनसनीखेज मामले से दहल उठा है, जहां चिकड़पल्ली इलाके में पुलिस ने फिल्मी अंदाज में कार्रवाई अंजाम देते हुए एक मुनज़्ज़म ड्रग नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में एक मारूफ सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वाली खातून सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इसके बॉयफ्रेंड और इसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक आला तालीम और जदीद तर्ज जिंदगी की आड़ में ये खातून अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर शहर में MD, MA, LSD और महंगी ओजिकश जैसी मंशियात नौजवान और IT प्रोफेशनल्स को फरोख्त कर रही थी। खुफिया इत्तला पर मंसूबाबंद छापे मार कर पुलिस ने मुलजिमीन को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और तकरीबन 4 लाख रुपए मालियत के मंशियात को जब्त किया। इब्तिदाई तफ्तीश में इंकशाफ हुआ है कि ये नेटवर्क शहर के मुख्तलिफ इलाकों तक फैला हुआ था और सोशल मीडिया और खुफिया चैट ऐप्स के जरिए ग्राहकों से राब्ता किया जाता था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। हैदराबाद के इलाकों में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए बालापुर पुलिस स्टेशन की खुसूसी नाइट पेट्रोलिंग मुसलसल चौथे दिन भी जारी रही, जबकि मिलारदोपल्ली पुलिस ने अपने हुदूद में मिशन चबूतरा के तहत रात गए गश्त अंजाम दिए। इस दौरान पुलिस ने देखा कि मुख्तलिफ इलाकों से नौजवान देर रात
इराकुंटा की जानिब होटल्स की तलाश में आ रहे थे, जिन्हें मौके पर ही रोककर काउंसलिंग की गई और हिदायत दी गई कि हंगामी सूरत हाल के अलावा रात 12 बजे के बाद घूमने से गुरेज करें। कार्रवाई के दौरान मुकर्ररा औकात के बाद खुले होटलों और पान शॉप्स के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए इंतबाह दिया गया कि आइंदा खिलाफ वर्जी पर कानून कार्रवाई की जाएगी। इस खुसूसी मुहिम के तहत बालापुर, गणेश चौक, रॉयल कॉलोनी, मलापुर, एरागंटा, मीनार, अलीनगर, खुबा कॉलोनी और शाही नगर के इलाकों का अहाता किया गया। पुलिस अहदेदारों ने वादे किया है कि अवामी तहफ़्फ़ुज़ और किसी भी नाखुशगवार वाक़े की रोकथाम के लिए रात की पेट्रोलिंग और निगरानी आइंदा दिनों भी जारी रहेगी। हमला होगा। जिले निजामाबाद पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्या IPS के अहकामात पर आरमूर टाउन के परकिट में एक कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर ACP आरमूर ने मुकामी अवाम को मुख्तलिफ तजावीज़ देते हुए कहा कि किसी भी हालत में किसी को भी गैर समाजी सरगर्मियों में मुलविस नहीं होना चाहिए और रात को गैर ज़रूरी तौर पर घूमना नहीं चाहिए। ख़वातीन को छेड़ना और हरासांग नहीं करना चाहिए। इस तरह चरस और नशावर चीज़ों से दूर रहने का मशवरा दिया गया है। ट्रैफिक क़वानीन पर सख्ती से अमल करने की हिदायत दी गई है। उन्होंने कहा कि मिशन चबूतरा की शुरुआत भी हो गई है। 10:30 के बाद गैर ज़रूरी तौर पर बाहर घूमने फिरने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस प्रोग्राम में तकरीबन 120 मकानात और 52 टू व्हीलर गाड़ियां और गैर मुनासिब दस्तावेजात के 4 ऑटोस को आर्जी तौर पर जब्त किया गया है। 3 मुश्तबा अफराद की जांच पड़ताल जारी है। सत्ताईस और 28 दिसंबर पुराने शहर में पानी की फराहमी रहेगी मुअत्तल। अहम पाइपलाइन की मरम्मत। मीर आलम, किशनबाग, मुगलपुरा, फलकनुमा, याकुतपुरा समेत दीगर इलाके शामिल। तेलंगाना राइजिंग 2047 महज तशहीर नहीं, अमली लाहे अमल। CM रेवंत रेड्डी का बयान। तमाम महकमे को फौरी एक्शन प्लान तैयार करने की हिदायत। कांग्रेस में मजबूती से बरकरार हूं, अफवाहें बेबुनियाद। दानम नागेंद्र का 2 टोक ऐलान। JHMC इंतखाबात में कांग्रेस व मजलिस की मुश्तरका शानदार कामयाबी का दावा। न्यू ईयर्स एव पर कमिश्नर पुलिस VC सज्जनार का सख्त इंतबाह। कानून शिकनी पर जीरो टॉलरेंस, रेजिंग, विलिंग, मंशियात और फहाश रक्स पर सख्त कार्रवाई। अवाम से महफूज जश्न की अपील। रिन बदार कत्ल केस में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। जफर पहलवान और उनके बेटों के घरों पर आला सुबह छापे। गैर कानूनी चाकू जब्त। आर्म्स एक्ट के तहत 2 FIR दर्ज। खबरनामा में बस इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब और फॉलो और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। आपके ख्वाबों का सफर मुक़द्दस अब पहले से ज्यादा आरामदेह, मुनज़्ज़म व पुरसुकून। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स हज 2026 के लिए लाए है 15 दिन और 35 दिन के खुसूसी 4 शानदार 5 स्टार सुपर डिलक्स, 4 स्टार सुपर डिलक्स
اور 3 स्टार डिलक्स नॉन शिफ्टिंग और शिफ्टिंग पैकेजेस। 3 स्टार पैकेज 7,50,000 से और 5 स्टार 10,25,000 रुपए से शुरुआत। 21 मई 2026 को हैदराबाद से जिद्दा रवानगी। हरम शरीफ व हरम नबवी के बहुत करीब पुरसुकून बेहतरीन रिहाइश, कुशादा कमरे और मोहब्बत भरी रहनुमाई। मनासिक हज के 5 बाबरकत दिन मीना, अरफात व मुजदलिफा के AC VIP टेंट्स, B कैटेगरी मुअल्लिम के तहत खुसूसी इंतजामात, रिटर्न टिकट, 3 वक्त का इंडियन खाना, स्पेशल हज किट, जियारात, पासपोर्ट व लगेज बैग, अनलिमिटेड लॉन्ड्री, 5 लीटर जमजम और हज वीजा प्लस इंश्योरेंस पैकेज में शामिल। आज ही अपनी सीट बुक करें, महदूद निश्ते। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स, मेन ऑफिस इनसाइड दीवान देवड़ी, ब्रांच ऑफिस बिसाइड HP पेट्रोल पंप, लकड़ी का पुल, हैदराबाद।